أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی لیائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. جو اللہ کے ساری تعریفیں ہیں، جو رحمان ہے، رحیم ہے اور فیصلے کے دن کا مالک ہے. بارش کے آپ کے میرے آقا جو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انجنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ آیت سورۃ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 11 کی سب سے پہلی آیت ہے. اور الحمدللہ ہم نے پچھلے درس میں سورۃ بقرہ کے پورے مکمل 10 رکوعوں کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر ہم سن چکے. آج اس کے رکوع نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں. اس کی آیت نمبر 87 آیت نمبر 80 پر 7 کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ رکوع نمبر 10 میں بھی، یعنی اس کی پہلے کی آیتوں میں بنو اسرائیل کے ایک نقص، ایک برائی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اے بنو اسرائیل، ہم نے توریت میں تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل مت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن مت کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کا ظلم اور گناہ کے کاموں میں، ناانصافی کے کاموں میں ساتھ مت دینا. ہم نے 3 باتوں پر ان سے عہد لیا، مگر ان تینوں میں بنو اسرائیل نے وعدہ خلافی کی، عہد کو توڑا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک دوسرے کو جلا وطن بھی کیا، اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا ظلم میں، گناہ میں اور ناانصافی کے کاموں میں. اور اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے آیتوں میں کہتا ہے، رکوع نمبر 10 میں، کہ نہ صرف بنو اسرائیل نے عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو جلا وطن کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو ناانصافی ظلم میں ساتھ دیتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو توریت پر عمل کرنے والے ہیں. جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سنا کہ اگر انہی میں کا ایک فریق اگر مغلوب ہو جاتا، شکست کھاتا اور ان کے پاس آتا تو اس کو فدیہ دے کر چھڑاتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ ہماری توریت میں یہی حکم لکھا گیا ہے کہ اگر تمہارا ہی ساتھی قیدی ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر آزاد کرو. اللہ کہتا ہے تم تو توریت کی حکم کو تو بڑا مان رہے ہو، جبکہ توریت میں یہ بھی تو حکم تھا کہ کسی کا آپس میں دوسرے کا قتل نہ کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا ظلم اور ناانصافی کے کاموں میں. ان احکامات کو جو بڑے بڑے تھے ان کو تو چھوڑ دیا، اور جو ایک حکم تھا کہ فدیہ دے کر چھڑانے کا وہ تو برابر یاد رہا.
اللہ ने कहा अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, क्या तुम किताब की बाज बातों पर तो ईमान रखते हो, बाज बातों को तो मानते हो, और तकफुरून बिबाज़, और बाज बातों को छोड़ देते हो, उनका इनकार कर देते हो, उसके साथ कुफ्र करते हो। जैसा कि मैंने बतलाया कि बनो कैनुका और बनो नज़ीर ये दोनों एक होकर अपने एक और ग्रोह के खिलाफ जिहाद करते, जंग करते, लड़ाई करते, उसी को मगलूब बनाते, उस पर जुल्म ज्यादती करते, और जब वो मगलूब हो जाते तो उन्हें फिदिया देकर छोड़ाते। अल्लाह ने कहा बाज़ अहकामात को मानते हो और बाज़ अहकामात का इनकार कर देते हो, इसकी सजा ये है कि तुम दुनिया में हमेशा जिल्लत और रुसवाई के साथ रहोगे, और आखिरत में भी शिद्दत वाला अजाब, तकलीफ देने वाला अजाब तुम्हें मिलेगा, और इस अजाब में कभी कमी वाक़या नहीं होगी। अल्लाह ने बनी इस्राइल के ताल्लुक से कहा, और साथ ही साथ बनी इस्राइल के जरिए से उम्मत मोहम्मदिया को नसीहत अल्लाह ने की कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम बनो इसराइल की रविश पर न चलना, दीन के सारे अहकामात को जू का तू मानना, एक पैर दहलीज के बाहर एक पैर दहलीज के अंदर, ऐसा मत करना। थोड़ा इस्लाम मानना, थोड़ा इस्लाम छोड़ देना, कुछ तबीयत के मुताबिक पट जाए और हजम हो जाए तो मान लिया, कुछ तबीयत के खिलाफ चला जाए तो छोड़ दिया, कुछ बातें जो उसूल के मुताबिक अपने गुरु, अपने फिक़ा, अपने मसले के मुताबिक हो गई तो मान लिया, उसके खिलाफ चली गई तो छोड़ दिया। ऐसा न करना, बल्कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना, जहाँ मेरे नबी का हुक्म आया उसको ज्यों का तुम मानना, उस पर अमल करना। अगर तुमने भी ऐसा नहीं किया, कुछ को माना कुछ को छोड़ दिया, तो तुम्हारे लिए भी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। और आज हम देखते हैं कि उम्मत मोहम्मद के साथ आज यही हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ उम्मत मोहम्मद दलील ख्वार हो रही है। सबसे पहली वजह है यही है कि इस उम्मत ने अपने रब को ही नहीं पहचाना, रब को छोड़कर गैरों के आगे सिजदा रेज हो जाती है, अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाती है, साथ ही साथ दीन का भी कोई इल्म नहीं, दीन के ताल्लुक से पूरी तरफ कोरे हैं। हाँ, उन्हीं दीन की बातों को मान लेते हैं जो तबीयत के मुताबिक हो, जो इनके उसूलों के मुताबिक हो, उसको मान लेती है और दूसरों को छोड़ देती है। तो अल्लाह ने कहा यही जिल्लत और रुसवाई तुम्हारे साथ भी होगी। अब अल्लाह ताला आयत रुकू नंबर 11 के अंदर, आयत नंबर 87 के अंदर अल्लाह कहता है वलक़द आतैना मूसल किताब, और यकीनन हमने, लक़द यानी यकीनन, यकीनन के माने में लक़द, वलक़द आतैना, और यकीनन हमने दिया, अता किया, आतैना यानी हमने अता किया, दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को हमने अता किया, क्या? अल किताब, एक किताब हमने दी, यानी तौरात हमने मूसा अलैहिस्सलाम को दी, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, एक किताब दी, गोया कि मूसा अलैहिस्सलाम की एक शरीयत अल्लाह ने दी, जिसके मुताबिक वो, इसके अहकामात के मुताबिक वो अपनी उम्मतों को, अपने मानने वालों को, अपने ताबे फरमा लोगों को नसीहत करते, उनकी रहबरी करते। यही सिलसिला मूसा अलैहिस्सलाम के बाद लगातार चलता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ही की शरीयत को मानने वाले कईयों अंबिया ईसा अलैहिस्सलाम तक आए। बनो इस्राइल में सबसे आखिरी नबी कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। सबसे आखिरी रसूल कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह कहता है वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारे रसूलों को भेजा। वक़फ़ैना मिन बअदिही, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भेजा बहुत सारे बिर्रुसुल, रसूलों को। मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान बहुत सारे अंबिया रसूल हो गुजरे हैं। अक्सर इनमें के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम ही की शरीयत को आगे बढ़ाते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम जो शरीयत लेकर आए थे, जो हलाल था उसको हलाल रखा, जो हराम था उसको हराम रखा, और उसी को आगे बढ़ाते रहे। बनु इस्राइल के सामने सारे रसूल आते, एक अल्लाह की दावत देते, तौरात के अहकामात को पढ़कर सुनाते,
یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بنو اسرائیل کے اندر نبیوں کو بھیجا جانے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد بنو اسرائیل میں، بنو مانی بیٹے، اسرائیل مانی یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ لگاتار عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا۔ اس کے بعد ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخری آپ وسلم ڈائریکٹ، ان کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں۔ تو آگے اللہ کہتا ہے اسے آدم 87 کے آگے ٹکڑے میں، وہ آتینا عیسی ابن مریم، آتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بعد بھیجا، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا نام صرف عیسیٰ بول کے نہیں لے رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم بول رہا ہے، یعنی عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید کو آپ دیکھو کہیں پہ بھی صرف عیسیٰ، بلکہ شاید ایک آدھ جگہ آیا ہو، مگر جہاں بھی آئے عیسیٰ ابن مریم بول کے آیا ہوا ہے۔ اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ اس نام کے ذریعے سے بھی عیسائیوں کے اس عقیدے کو رد کرنا چاہتا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ وہ آتینا عیسیٰ، وہ آتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی عطا کیا کیا؟ البینات، یعنی بینات ہم نے عطا کی۔ یہ بینات کیا ہے؟ بین کی جمع بینات، بین کہتے ہیں کھلی ہوئی، روشن، ڈسکرائبڈ۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے ہوئے بینات، یعنی معجزے ہم نے دیے۔ کیا معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے، اور جو بہت زیادہ واضح تھے، بہت زیادہ کھلے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بینات یعنی معجزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 49 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 کے اندر اللہ کہتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 اس کا رکو نمبر 5 کی آیت نمبر 48 اور 49۔ اللہ کہتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کیا، نبی بنایا، تو ہم نے انہیں یعلمہم الکتاب، ہم نے انہیں کتاب سکھائی، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھائی، یعنی انہیں انجیل دی اور حکمت والی باتیں بھی ہم نے سکھائی، والتوراۃ والانجیل، یعنی تورات اور انجیل دونوں کی دونوں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائی، ورسولاً، اور یہ رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، کس کی طرف؟ الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف یہ آخری رسول تھے۔ اب آیت نمبر 49 کے اندر الی بنی اسرائیل کے بعد ایک روک ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، اس کے بعد جو ٹکڑا ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں
अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, ऐ बनी इसराइल, ईसा अलैहि सलाम बनी इसराइल से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ बनी इसराइल, बेशक मैं यकीनन तुम्हारी तरफ लाया हूं आयतें, निशानियां, दलाइल तुम्हारे रब की तरफ। क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, यकीनन मैं तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी बड़ी निशानियां, दलाइल और मौजिजे लेकर आया। क्या है वो मौजिजात, वो बयीनात, वो दलाइल? कहते हैं अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिन अत्तीन कहैअति त्वय्र, कि ऐ बनी इसराइल, मैं, बेशक मैं, अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं ना, बेशक मैं अख़लुक़ु लकुम मिन अत्तीन, कि मैं खिलकत करता हूँ, पैदा करता हूँ या बनाता हूँ तुम्हारे लिए मिट्टी से, कहैअति त्वय्र, परिंदे की मानिंद एक चीज बनाता हूँ। मिट्टी से परिंदे की स्टैच्यू और मूर्ति में बनाता हूँ, अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए। दोनों बातें आगे, बनाने वाले ईसा अलैहि सलाम, किसके लिए बनाया जा रहा? बनो इसराइल के लिए। खास मकसद के तहत काम हो रहा है, मकसद के तहत काम हो रहा है। अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिन अत्तीन कहैअति त्वय्र, कि मैं मिट्टी से तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल बनाता हूँ। फ़अन्फुख़ु फ़ीहि, फिर उसके अंदर फूंक मार देता हूँ। फ़यकूनु त्वय्रन, फिर वो फौरन परिंदा बन जाता है, असली का परिंदा, सचमुच का परिंदा बन जाता है। मिट्टी का परिंदा ईसा अलैहिस्सलाम की फूंक मारते ही वो सचमुच का परिंदा बन जाता है। सवाल उठता है, किसने परिंदा बनाया? ईसा अलैहिस्सलाम खुद जवाब देते, बिइज़्निल्लाह, ये जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। मैं अगर चाहूं भी कि मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाऊं और उसमें फूंक मारूं, और अल्लाह न चाहे कि वो परिंदा बन जाए, नहीं हो सकता। मेरा काम मिट्टी से परिंदा बनाना है और उसे फूंक मारना है। इसके आगे उसको सचमुच परिंदे की शक्ल दे देना, परिंदा बना देना, परिंदे की जिंदगी दे देना और उसको उड़ने की सलाहियत दे देना, ये अल्लाह के हुक्म से होता। मैं क्या क्या करता हूँ? मिट्टी से परिंदा बनाता हूँ और फूंक मार देता हूँ, बस। ये कितना बय्यिनात है, लफ्ज भी देखो अल्लाह ताला मौजिज़ों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है बकरा में, बय्यिनात, यानी पूरी तरह खुले हुए, वाज़ह वाज़ह मौजिज़ात लेकर ईसा अलैहिस्सलाम आए थे बनो इसराइल की तरफ। उसमें से पहला मौजिज़ा क्या है? मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाकर उसमें फूंक मार देने से वो सचमुच का परिंदा बन जाता। वो उबरीउल अकमह वल अबरस, और मैं कोड़ी वाले बीमारी को, शक को और अंधे को अच्छा कर देता हूँ। हम हाथ फेर देते किसी कोड़ी के मर्ज पर, जिस पर सफेदी आ जाती है, जिन पर छू देते तो उसकी बीमारी खत्म हो जाती। अंधे के आंख पर हाथ फेर देते तो अंधा बीना हो जाता था, नाबीना बीना हो जाता, देखने लग जाता था। इतने वाज़ह मौजिज़ात हैं, खुले हुए मौजिज़ात हैं, इसे अल्लाह ताला बय्यिनात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। क्या कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम? वो उबरीउल अकमह वल अबरस, और मैं अच्छा कर देता हूँ कोड़ी के मर्ज वाले को, कोड़ी के मरीज को और अंधे को। वो उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मुर्दे को मैं जिंदा कर देता हूँ। जो कितना बड़ा मौजूद हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को बोलते जिंदा हो जा तो जिंदा हो जाता था। अब फिर आगे कहते हैं ये सब कुछ होता कैसे था? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से होता था। मैं तो सिर्फ हाथ फेरता कोड़ी के मरीज पर, ठीक करना अल्लाह का काम, ठीक करना अल्लाह का काम। अंधे की आंख पर हाथ फेर देता, उसको बीना ही देना अल्लाह का काम। मुर्दे की तरफ इशारा करना, मुर्दा जिंदा होना, ये अल्लाह का काम। इशारा मैं करता, काम अल्लाह करता, इसलिए मंसूब अल्लाह की तरफ कर रहे हैं। बाज अहमाल को जो जाहिरी है उसको अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं,
जो बातिनी है, छुपे हुए हैं, वो कैसे काम तकमील में पहुंचता है उसको अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में यही कहता है, वलिल्लाहि तर्जिउल उमूर, हर काम अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाता है। दुनिया का जो भी काम होता है उसके करने वाली जात कौन होती है? अल्लाह। जाहिरी सबब इंसान बनता है, जाहिरी सबब इंसान और इंसान के अतराफ के असबाब बनते हैं, बस अंजाम निकालना, किसी चीज का नतीजा निकालना ये अल्लाह के हाथ में। हाँ, अल्लाह ये चाहता है कि ये दुनिया जिस तरह आलम असबाब है, इंसान भी किसी न किसी का सबब बने ताकि किसी का काम हो, और इंसान के कामों के लिए भी अल्लाह चाहता है कि इंसान अपने लिए असबाब का इस्तेमाल करे। उन असबाब के जरिए से अल्लाह ताला कामों को अंजाम तक पहुंचाता है, कामों को अंजाम तक पहुंचाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मुर्दे को तक जिंदा कर देता हूँ, ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। वो उनब्बिउकुम, और देखिए कमाल वाला मुजज़ा, उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून, और मैं तुम्हें खबर दे देता हूँ, गैब की खबर भी, गैब की खबर भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। बिमा तअकुलून, जो कुछ तुम खाकर मेरे पास आते हो तो बता देता हूँ कि तुम ये और ये चीज खाकर आए हो। ये मुजज़ा है। जो कुछ अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को बतला था वही ईसा अलैहिस्सलाम बनो इस्राइल को बतलाते। ऐसा नहीं कि सारा नॉलेज, सारा इल्म अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को दे दिया था कि वो आलिमुल गैब हो गए और सब कुछ मालूम हुआ, ऐसा नहीं है। अल्लाह जितना नॉलेज, जितना इल्म ईसा अलैहिस्सलाम को देता था उतना इल्म ईसा अलैहिस्सलाम बनो इस्राइल को बतलाते थे। ये मौजिज़ा था, इसलिए खास जगह में बतला गए। खाना खाकर आए तो बतला रहे हैं, है ना, खाना खा के आए तो बतला रहे हैं। कहाँ बैठ के खाए, किस जगह बैठकर खाए, किसके साथ बैठकर खाए, रात में खाए कि दिन में खाए, इसका जिक्र नहीं है। क्या खाकर आए ये बतलाते थे, क्योंकि अल्लाह उतना ही इल्म देता था। जो आलिमुल गैब होता है उसको तो सब कुछ मालूम होना चाहिए। बाज लोग ईसा अलैहिस्सलाम की इन मौजिज़ात से दलील पकड़ते हुए कहते हैं अल्लाह ताला एक नबी को जब ये बतला सकता है तो नबी को, सहाबा को, औलिया अल्लाह को गैब का इल्म क्यों नहीं दे सकता? उनको भी अल्लाह ने गैब का इल्म दिया? नहीं दिया। गैब का इल्म रखने वाला सिर्फ एक ही एक जात है, वाहिद, वो अल्लाह। और अल्लाह ताला अपना गैब का इल्म किसी को जाहिर नहीं करता। हाँ, जिसको वक्त और जरूरत होती है वहां पर उतना इल्म देता है। जैसे अल्लाह ने वो इल्म दिया, अब वो गैब नहीं रहा। इससे बड़ा गालिबन इल्म गैब पर मैंने काफी अच्छी तशरीह की किया है। तो गैब का इल्म कहते किसको है? जैसे अल्लाह ने गैब का इल्म एक नबी को दिया, नबी पर अब वो गैब नहीं रहा, गैब पर से पर्दा उठ गया। जैसे ही नबी ने अपनी उम्मत को बतलाया, जैसे उम्मत को बात मालूम हुई, अब वो गैब नहीं रही। उसके अलावा अल्लाह के पास जो बातें हैं वो सारी की सारी गैब है, नबी को नहीं मालूम और उनकी उम्मत को नहीं मालूम। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तुम्हें खबर दे देता हूँ, जो कुछ तुम खाकर आते हो मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि तुम क्या खाकर आए हो। वमा तदखिरून, और जो कुछ तुम जखीरा करते हो घरों में उसकी भी मैं खबर दे देता हूँ। फी बुयूतिकुम, तुम अपने घरों से क्या खाकर आते हो, अपने घरों में क्या जखीरा करते हो, इसकी खबर मैं तुम्हें दे देता हूँ। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इनको तुम मुमिनीन, ऐ बनो इस्राइल, अगर तुम मुमिन हो, अगर तुम ईमान वाले हो, तो इसमें ये जो मौजूदात हो रहे हैं, ये जो खर्क आदत, गैर मामूली वाकया जो तुम्हारे आगे रूप पजीर हो रहे हैं, इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं, बड़े बड़े दलाइल हैं कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल, इस बात पर ईमान लाने के लिए, है ना। तो सूरह आल इमरान के आयत नंबर 28-49 से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मौजिज़ात, बय्यिनात अल्लाह ने दिए थे। जैसा कि अल्लाह यहाँ पर कह रहा है, वो आयत वो आतैना ईसा इब्न मरियम बय्यिनात, हमने ईसा इब्न मरियम को बहुत सारे बय्यिनात, बहुत सारे मौजिज़ात हमने दिए। और आगे अल्लाह कहता है सूरह बकरा के अंदर ही आयत 87 के अंदर, वो अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, और हमने ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदस से तक़वियत दी। अय्यदना का मतलब, अय्यदना लफ्ज़ बना यद से, यद मानी हाथ। हमने ईसा अलैहिस्सलाम
का हाथ बिठाया, हम बोलते हैं ना उर्दू में काम करो सब तरह हाथ बिठाओ, भाई हाथ बिठाओ मतलब साथ दो। तो हमने ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदुस के जरिए से मदद दी। अय्यदना का मतलब मदद देना। हमने ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदुस से मदद दी, सपोर्ट दिया हमने। तो रूहुल कुदुस कौन? रूह यानी रूह, कुदुस यानी पाक, पाक रूह। यहाँ पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में बहुत सी जगह पर रूहुल कुदुस बोल के पुकारा गया है, लफ्ज इस्तेमाल किया है। और एक जगह अल्लाह ने रूहुल अमीन भी कहा कि इस कुरान को रूहुल अमीन लेकर नाजिल होते हैं, कहा अल्लाह ने। जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक और नाम रूहुल अमीन, और बाद जगह में सिर्फ रूह भी कहा अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को रूह का। जिब्रील अलैहिस्सलाम इस सारे फरिश्तों के सरदार, सारे फरिश्तों के सरदारुल मलाइका। ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम है। सरदारुल मलाइका के जरिए से ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की गई। ये भी एक बहुत बड़ा मौजिज़ा हुआ। अब आगे अल्लाह कहता है अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुन, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बतलाया गया, मूसा अलैहिस्सलाम किताब के बारे में बतलाया गया, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बतलाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जितने रसूल हो गुजरे हैं उनका अल्लाह ने तज़किरा किया। बिलखुसूस ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत अल्लाह ने बतलाई। और अब अल्लाह कहता है अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुन, ऐ बनु इस्राइल, अब जरा देखो तुम कैसी कौम हो कि जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास आता, मेरे दीन की दावत लेकर आता, मेरे हक बात की, मेरे तौहीद की दावत लेकर आता, मेरी शरीयत की दावत लेकर जब तुम्हारे पास कोई रसूल आता, रसूल यानी लफ्ज रसूल इस्तेमाल है, मतलब कोई भी रसूल, कोई खास रसूल नहीं, कोई भी रसूल तुम्हारे पास आता, बिमा ला तहवा अनफुसकुम, वो रसूल जब भी आता तुम्हारे पास और वो ऐसी बातें पेश करता जो तुम्हारी तबीयत के खिलाफ होती, तुम्हारे नफ्सानी ख्वाहिशात के खिलाफ होती, बिमा ला तहवा अनफुसुकुम, तुम्हारे नफ्स के खिलाफ अगर वो बातें होती, दीन की, शरीयत की, वो अहकामात, वो अकाइद जो रसूल लेकर आता, कोई भी रसूल लेकर आता, तो क्या करते? इस्तकबरतुम, जब तुमने तकब्बुर इख्तियार किया, घमंड इख्तियार किया, उसके खिलाफ चले गए, फौरन उसका इनकार कर दिया। रसूल तुम्हारे पास मेरे दीन की दावत लेकर आता, उस दावत में अगर बात कोई ऐसी जो तुम्हारे नफ्स के खिलाफ होती तो फौरन तुम तकब्बुर करते, जहां तक नफ्स के मुताबिक बात चलती तब तक हजम करते, जैसे नफ्स के खिलाफ बात चली गई, तबीयत के खिलाफ बात चली गई, उन उसूलों और ज़वाबित के खिलाफ बात चली गई जो तुम्हारे ग्रोह, तुम्हारे फिरके, तुम्हारे मसलक के खिलाफ थी, तो फौरन तुमने क्या किया? इस्तकबरतुम, तुम्हें तकब्बुर इख्तियार किया। जैसा कि इससे पहले की बहुत सारे आयतों की तशरीह करते हुए मैंने ये भी कहा कि ऐसा ही मामला उम्मत मोहम्मद में हो रहा है कि खुली खुली आयत अगर मौजूद हो, जिसका तर्जुमा भी खुला खुला हो, तो देखकर फौरन पेशानी पे बल आ जाते हैं और कहते हैं ये कुरान आप क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं तो इसका तर्जुमा हमें क्यों बतला रहे हैं? ये आयत का मफहूम हमारे मनहज, हमारे मसलक, हमारे फिरके और गुरोह के मुताबिक नहीं है। फौरन तकब्बुर आता है, बजाय आजिज़ी इंकिसारी आने के कुरान की आयत आ गई। मिसाल के तौर पर कुल कुरान मजीद में 4 जगह पर अल्लाह ने एक ही बात को दोहराया है, वो ये कि अल्लाह ने हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम व लहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ल लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने ऊपर हराम किया है मुर्दार, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, बहता खून अल्लाह ने हराम किया है, व लहमुल खिंज़ीर, सूअर का गोश्त अल्लाह ने हराम किया है, वमा उहिल्ल लिग़ैरिल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कोई चीज नामजद कर दी जाए खाने की, वो भी अल्लाह ने हराम किया है। अभी आयत तो वाज़ह है ना,
खुली है ना, अब इस एक आयत को दुनिया के हजार फिरकों और मसलकों जमातों के आगे पेश करो जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर बकरे मुर्गे काटना जायज समझते हो। उन्हें कहेंगे देखो ये तो कुरान मजीद में एक नहीं दो नहीं 4 जगह में, बिल्कुल सूरह बकरा में वो आयत मौजूद है, सूरह नहल में वो आयत मौजूद है। अगर पेश करते और कहेंगे देखो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर बकरे मुर्गे जुबान नहीं कर सकते, ये हराम है उसका गोश्त खाना, ये वैसे ही है जैसे आप लोगों के जमाने के मुशरिकीन अपने बुतों के नाम करते थे, और उनके बुत भी कोई ऐसे ही आयरे गहरे शराबी जुआरी नहीं थे, वो भी उस जमाने के औलिया अल्लाह थे। तो कहते हैं ये आयत तुम हम पर पेश कर रहे हो, ये आयत हमें समझ में नहीं आती। और कहते हैं कि आयत तुम्हें समझ में आ गई, हमारे बड़े बड़े आलिम को क्यों नहीं समझ में आई? लेकिन आयत का क्या है, इनकार नहीं तो क्या है, फौरन कहते इसका माना मतलब ऐसा है ही नहीं। क्यों कि नफ्स की तबीयत के खिलाफ, अपने फिरके अपने मसलक के उसूल और जवाबित के खिलाफ अगर बात चली जाए फौरन उसका इनकार। अल्लाह ताला कह रहा है बनो इस्राइल ने भी यही किया, फौरन उस पर इस्तकबार किया, घमंड किया, तकब्बुर किया, और क्या किया, वो फरीक़न कज़्ज़बतुम, इन रसूलों में से में बाज को तो तुमने झुठला दिया। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनो इस्राइल ने झुठला दिया, डायरेक्ट नहीं मानते का, तुम्हारी बातें हमारे तबीयत के खिलाफ है, तुम्हारी बातें हमारे फिरके हमारी मसलक हमारी जमात के खिलाफ है, इसलिए हम नहीं मानते। तो फरीक़न तक़तुलून, और बाज़ रसूलों को तो तुमने कत्ल ही कर दिया, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम यहया अलैहिस्सलाम को बनो इस्राइल ने कत्ल कर दिया। ये दुश्मनी सिर्फ इस वजह से क्योंकि नफ्स के खिलाफ दीन के अहकामात थे, बिमा ला तहवा अनफुसकुम, यानी वो अहकामात जो नफ्स के खिलाफ थे, तबीयत के खिलाफ थे, उनको जब सुना तो उसके खिलाफ तकब्बुर और अंबिया से दुश्मनी, और वो अहकामात जो अपने गुरु अपने मसलक अपने जमात के उसूल और जवाबित, ये याद रखें उसूल और जवाबित के खिलाफ अगर दीन के अहकामात आ जाते तो उन दीन के अहकामात को छोड़ दिया जाता, मगर उसूल और जवाबित नहीं छोड़े जाते थे। तो अल्लाह ने कहा ये तुमने किया, इसलिए बाद रसूलों को झुठलाया और बाद रसूलों का कत्ल किया। आयत नंबर 87 से उम्मत मोहम्मदिया को यही नसीहत मिलती है कि उम्मत मोहम्मदिया भी सबसे पहले जितने अंबिया हो गुजरे सब पर ईमान लाए, किसी नबी का इनकार न करे। इस उम्मत में एक भी शख्स अगर वो एक बार भी ये कह दे कि मैं किसी नबी को नहीं मानता सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो काफिर हो जाता है। मुसलमान होने के लिए जरूर है कि सारे अंबिया पर ईमान रखे, अमल शरीयत मोहम्मदिया पर करे, अमल शरीयत मोहम्मदिया पर करे। इसी बात अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर भी आखिरी के 2 आयतों में अल्लाह ने यही कहा है, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। हम ईमान ले आते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, उसके सारे रसूलों पर, सारे रसूलों पर ईमान लाना शर्त है। दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम के जो मौजिज़े हुए उन पर भी ईमान लाना, ईसा अलैहिस्सलाम ने वाकई ऐसा सब कुछ किया है और वो जिन बाप के पैदा हुए हैं अल्लाह की तरफ से अमर तकवीनी के जरिए से पैदा हुए हैं, और उनकी माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलातो व तस्लीम है। और साथ ही साथ जब भी अल्लाह ताला के अहकामात हमारे पास आए, पहले आका वसल्लम की सुन्नत और अहादीस हमारे पास आए, जिस तरह बनो इस्राइल के पास कौन जाते थे, रसूल जाते थे। अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुन, जब भी बनो इस्राइल के पास कोई भी रसूल जाता तो वो उसका इनकार कर देते, तकब्बुर इख्तियार करते, यहाँ तक कत्ल भी करते थे। इसी तरह उम्मत मोहम्मद के बाद जब भी अल्लाह की आयत आए, चाहे आका वसल्लम की कोई सुन्नत और हदीस आए, अगर वो हमारी नफ्स के खिलाफ है, अगर वो हमारी लॉजिक मंतिक और अकल के खिलाफ है, तो ये समझे कि मेरा नफ्स मुझे गुमराह कर रहा है, ये समझे कि मेरी अकल इस्लाम के मुकाबले में बहुत छोटी है कि मैं इसको समझ नहीं सकता। देखिए ना कितना बड़ा फर्क है एक मुसलमान में और एक गैर मुस्लिम में। गैर मुस्लिम जो अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं, अपनी दीनी किताबों को पढ़ते हैं, और अगर कोई बात उन्हें समझ में नहीं आती है तो कहते हैं इस किताब में कुछ गलती है। क्या कहते हैं,
इस किताब में कुछ गलती है। जब मुसलमान अपनी दीनी किताबों को बिलखुसूस कुरान मजीद को पढ़ता है, अगर इसकी समझ में कोई बात नहीं आती है तो कहता है कि मेरी अकल इस काबिल नहीं है कि इस बात को समझेगी, इतनी आला और शान वाली है। ये इतना बड़ा फर्क है। तो जैसे ही अल्लाह की आयत सल्लल्लाहु की हदीस और सुन्नत हमारे सामने आए, नफ्स के खिलाफ हो तो नफ्स को बाजू कर दे, अपने नफ्स को उसके ताबे कर दे। अकल लॉजिक मंतिक के खिलाफ हो तो कहे कि मेरी अकल बहुत छोटी है, ये बातें बड़ी हैं। वरना आज क्या हो रहा है, कुरान मजीद की आयत और अहादीस आने के बाद भी अकल में बात न बैठे तो कहते हैं भाई ठीक है, बात तो सही है, हदीस तो सही है, पर हमारी अकल में नहीं बैठती है। ऐसा कह के गए बहुत सारे लोगों ने दीन का बहुत सारा हिस्सा जो अहादीस की शक्ल में था सीधा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया, कहा हमारी समझ में नहीं आती। मैं कहता हूँ आप होते कौन है जो अपनी अकल की बुनियाद पे कुरान को परखेंगे, अहादीस को परखेंगे? कि आप कुरान मजीद और अहादीस को परखने के लिए अकल कसौटी है। अबू दाऊद की सही सनद वाली हदीस आप वसल्लम कहते हैं, हजरत अली करमुल्लाह वजह इस हदीस से वो कहते हैं, अगर दीन अकल की बुनियाद पर होता, अगर इस्लाम अकल की बुनियाद पर होता तो मसा जराबों पर नीचे से किया जाना चाहिए था, ऊपर से नहीं। पर इस्लाम में जराबों पर, जो जराबे होते हैं ना, चमड़े के जो जूते होते हैं, जो वजू करने वाले एक बार पहन लेते हैं तो बार बार पैर धोने की जरूरत, इससे मसा करना पड़ता और उन्हें ऊपर से बस ऐसे हाथ फेरना पड़ता, वजू हो जाता है। तो कहते हैं अगर अकल की बुनियाद पर होता तो नीचे से किया जाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी नीचे लगती है। तो इस्लाम ने कहा नीचे में नहीं, ऊपर करो, तुम्हारा वजू हो जाता। अकल ताबे नहीं है इस्लाम, बल्कि इस्लाम के ताबे अकल होना चाहिए। तो जो नफ्स के खिलाफ, अकल के खिलाफ चली जाए तो उसका इनकार न करे, बल्कि उसको समझने की कोशिश करे। उलमा की रहबरी ले, उलमाओं से पूछे, एक नहीं दो नहीं 4 किताबें पढ़े, मगर अल्लाह की बात, पैगंबर सल्लल्लाहु की बात आए तो उसको फौरन इनकार न करे, उसको न छोड़ दे, बल्कि उसके लिए वक्त ले, स्टडी करे और फिक्र करे, तब जाके बोले कि हाँ भाई ये हदीस इस उसूल की बुनियाद तो सही नहीं है, ये आयत इस मुनासिबत से इसका माना मफहूम ये नहीं है। फौरन अकल, क्योंकि अल्लाह ताला बनु इसराइल के ताल्लुक क्या कर रहा, बिमाला तहवा अंफुसकुम, यानी उनके नफ्स के खिलाफ, उनकी अकल के खिलाफ अगर बात चली जाती तो उसका इनकार कर देते, तकब्बुर क्या करते थे। तो उम्मत मोहम्मद ऐसा न करे, बल्कि उसूलों के तहत हर चीज के लिए उसूल मौजूद है, हर चीज के लिए उसूल है, उसूल जवाबित है, कानून है। कुरान को समझने के कानून है, कुरान को कोई नहीं समझ सकता है, कुरान को समझने के लिए कानून है। कहीं के भी आयत कहीं के भी उठाए और पढ़ लेंगे तो क्या होता, गुमराही आ जाती। गुलाम अहमद कादियानी से कहते लोग कि हजरत आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा गया? बोले कुरान में अल्लाह ने कहा ना कि नमाज के करीब भी मत जाना, नमाज के करीब भी मत जाना, कुरान भी ये लिखा है, इससे मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। तो शागिर्द ने कहा हजरत आगे की आयत भी तो देखो कि जब नशे की हालत में, अरे मियां पहले इतना तो अमल करने दो, पहले इतना तो अमल करने दो, फिर आगे का देखेंगे। कुरान को अपनी अकल की बुनियाद पर जब पढ़ेंगे तो आधा अधूरा भी पढ़ सकते हैं। कुरान को कुरान के हिसाब से अगर नहीं समझेंगे, उसको बीच में से कहीं उठा लिया आयत को तो भी गुमराही है। कहीं से उठा के माना मतलब सिर्फ अरबी तर्जुमा करने से कुरान समझ में नहीं आता। कुरान समझने के लिए कुरान के उसूल है, कुरान को कुरान से समझना चाहिए, कुरान को पैगंबर सल्लल्लाहु की अहादीस की रोशनी में समझना चाहिए। फिर भी बात थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली है तो सहाबा के अक़वाल मौजूद है, सहाबा के साथ ताबईन, तबे ताबईन, मुहद्दिसीन, इमामों के अक़वाल मौजूद है। यहाँ तक आने तक तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भी आयत नहीं बस इसका माना मतलब तफसीर न मिलती हो, मगर लोगों ने कुरान को भी अपने नफ्स से, जैसा हम इससे पहले 12 बहुत सारी मिसालें मैंने दी हैं कि लोगों ने इसके तर्जुमे में तक अपने नफ्स के मुताबिक तर्जुमा किया। जैसे रहमान की मैंने मिसाल दी थी, अर्रहमान अल्लमल कुरान, इसका उर्दू नॉर्मल तर्जुमा क्या होता, रहमान जिसने, अर्रहमान अल्लमल कुरान जिसने कुरान सिखाया। अच्छा तर्जुमा कर दिया, रहमान जिसने मोहम्मद को कुरान सिखाया, ये तर्जुमा है ही नहीं, अपने नफ्स को भाया, अच्छा लगा तो उसका ये तर्जुमा कर दिया। और जहां कुरान में आ गया कि गैरुल्लाह,
लफ्ज आया तो उसका नंबर 1 हाशिया लगा के बाजू लिख दिया, यहाँ गैरुल्लाह का मतलब एक तरफ अल्लाह, सारे अंबिया, सारे फरिश्ते, सारे औलिया अल्लाह, दूसरी तरफ सारे गैरुल्लाह। हाशिया लगा कर क्या कर दिया, अपने नफ्स के मुताबिक कुरान के मानने में मतलब को भी बदल दिया। इस तरह नफ्स के खिलाफ गया तो कुरान को भी छोड़ दिया, नफ्स के खिलाफ गया तो अहादीस रसूल को भी छोड़ दिया। अल्लाह कहता है उम्मत मोहम्मद ऐसी न करे, उम्मत मोहम्मद बनी इसराइल की रविश पर न चले, बल्कि उसूलों के तहत माने। उसूल होते हैं, हर चीज के उसूल और दवाबित होते हैं। अंग्रेजी में नॉर्मल आम तौर पर एक जुमला बोलना हो तो उसके लिए उसूल है, तो पहले सब्जेक्ट बोलो, बाद में वर्ब बोलो, बाद में ऑब्जेक्ट बोलो। क्यों ऐसा? ऑब्जेक्ट को पहले ला ले, सब्जेक्ट को बाद में ला ले तो माना ही और मतलब ही बदल जाता। जुमला बनाने का भी एक कानून है, तो ऐसा कुरान को समझने का, हदीस को समझने का कोई कानून नहीं है। इन कानून के तहत दीन को समझे तो इंशाल्लाह एक भी बात नफ्स के खिलाफ नहीं जाएंगी। आज जा रही है तो नफ्स को दीन के ताबे कर लेंगे, अकल को दीन के ताबे कर लेंगे। अपने मसलक, अपना मजहब, अपनी जमात के खिलाफ अगर चली जाए तो कुरान मजीद और आयतों को और अहादीस को पहले मुकद्दम रखेंगे, पहले इन्हें प्रेफरेंस देंगे, बाद में अपनी चीजों को प्रेफरेंस देंगे। अल्लाह ये चाहता है उम्मत मोहम्मद जैसे बनो इसराइल के जरिए अल्लाह ताला ये नसीहत करता है। अल्लाह ताला दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें अपनी नसीहत में हमें शामिल करे, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जिनमें अल्लाह ताला कि ये नसीहत कबूल करने वाले जो लोग हैं, अल्लाह ताला उनमें हमें शामिल करे। अल्लाह ताला हमें नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करने से बचाए। अल्लाह ताला हमें असलियत, तासुब और अपना मसलक, अपना मजहब कहकर अल्लाह उसके रसूल की बातों को छोड़ने वालों में शामिल करने से अल्लाह ताला हमें बचाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।